You are also integrating artificial intelligence in your application. आप सोच रहे हो that you will be replacing the human resource who are working at the company. Being a part of a country which is very rich in skilled people, एक ऐसी कंट्री में हम एक ह्यूमन के टैलेंट को सरपास करने की बात क्यों कर रहे हैं? But maybe in 10-15 years down the line, the people will not be replaced, but the skills will be replaced. Being second generation entrepreneur, what's that thing which you felt कि नहीं ये तो मेरे को करना ही है. इतनी बड़ी MNCs इतने सालों से कर ही रही है तो भी वो लोग को ये मार्केट गैप पता नहीं चला, and which Trek HR is currently presuming. Keka, Zoho, many other HR systems are definitely not our competitors. हम HR के लिए टूल बना ही नहीं रहे. We are technology partners for your business. We don't want to just give you subscription कि आप ये use अच्छा करोगे अच्छा है, बुरा करोगे बुरा है. First 3 people who have taken our ERP system, 25 साल से वही लोग आज भी हमारे साथ ही हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. So it's easy to scale up, but it's tough to sustain the Correct. market. We are not good in marketing. We could not onboard a lot many people जो आजकल सिर्फ गोल होता है कि सबको onboard करते जाओ करते जाओ करते जाओ. We are totally opposite. What are some pinpoints which to-be entrepreneurs have to focus on? Whenever you're creating a thing, don't create जो आपके दिमाग में है, create something for a customer. Find the customer first. Hello and welcome to Beyond the Noise. I'm your host Dhruvish and today we are inviting a very young age entrepreneur. आपको पता है कि 2050 और else 2030 में ह्यूमन रिसोर्स का प्रेजेंस रहेगा या नहीं रहेगा? Will corporate work the same? क्योंकि इन्होंने ऐसा स्टार्टअप बनाया है जो ह्यूमन रिसोर्स को भी रिप्लेस कर सकता है. ही इज बिल्डिंग एन एप्लीकेशन इन द डोमेन ऑफ HRMS इन विच ही इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग गेम्स जिससे यूजर्स भी इंटरैक्टिव वे में वो एप्लीकेशन यूज कर सके. सो टुडे वी आर हैविंग सोनाल दुआ ऑन आवर शो, फाउंडर ऑफ अ लीडिंग HRMS सॉफ्टवेयर कंपनी known as Trek HR, and we'll be discussing more about that as 80% of the viewers who are watching us are not subscribing us. So I also ensure that you subscribe to this channel if you find insightful conversation from our show. So without wasting much of your time, let's get started and I hope you watch the full podcast. Hello and welcome to the show, Sonal. How have you been? I'm good. How are you? I'm doing well, and it's a pleasure for us that we are inviting a second generation entrepreneur of a legacy owned business on our show who has started something on his own at a different vertical. So thank you so much for coming, and today it can be a very insightful podcast for to-be entrepreneurs also. उनको भी पता चलेगा कि अगर आपके पास पैसा है तो भी आप दूसरा स्ट्रीम चूज करके एक नया वर्टिकल कैसा बना सकते हो. Thanks for having me first of all. So thank you so much. Who is Sonal Dua? If you can explain more about you. Very brief introduction about myself. My name is Sonal. A very, very unique and a double A is there in the word. So it's not a part of dictionary as of now, but maybe soon it'll be. So I come from a engineering background. My father was definitely, was actually an engineer in the early 1970s, 1980s he did his engineering. And then I'm a second generation into the IT business, a family owned business. I'm a second generational owner. But my journey started off from, again, BTech computer science. I have my education done from Jamia Millia Islamia. And वहाँ पर 2-3 साल में exposure was good because मैं एक family managed business में already exposure ले रहा था. My father used to get all the good gadgets, all the latest things in the market to our homes, to our offices. Computers या PCs, I had a PC around, I think 2002-2003 में we had a personal PC because his job was that, but he gave me access to it also. So तभी से gadgets की तरफ inclination बहुत ज़्यादा था. Since 10th, 11th, 12th, I was doing programming on embedded. So ये microcontrollers वगैरह के ऊपर I had my hands down and I was okay in it. So, and my father was also promoting ये तो अच्छा कर रहा है ऐसा है. So वो father की appreciation means a lot. So inclination definitely towards computer science, towards engineering रहा. Then I joined Jamia Millia Islamia for BTech computer science. And in 3rd year, 4th year, again, because of the design or the solution driven approach of mine, I got a chance to represent my college in Smart India Hackathon, which was one of its kind. It was the first of its kind. So नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक प्रोग्राम शुरू किया था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन नाम से, टू प्रमोट द यूथ ऑफ द इंडियन एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसमें IITs NITs सारे स्टूडेंट्स इन्वाइटेड थे. एंड दे वर फोकस्ड ऑन टू डिलीवर अ प्रोडक्ट और अ सोल्यूशन टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, नॉट जस्ट एनीथिंग, अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. एंड दोज प्रॉब्लम्स वर collected from different departments of the government. So our problem which we appeared for or which we participated in was given by Airport Authority of India, AICTE. उनका प्रॉब्लम ये था कि जो ड्रोन्स या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं टू द कंज्यूमर्स नाउ डेज,
उनको रिस्ट्रिक्ट करना है मार्क्ड स्पेसेस में एंटर करने से, Okay. which are airports, maybe defense areas, maybe the central Delhi part. Yeah, so some bounds जहाँ पे there is some important information which is Absolutely. being India covering Correct, और वो चीज़ों के अलावा you can fly but you do not हाँ. fly on that. So they wanted locations. particular device जो कि retrofitted आएंगे because इंडिया में सेल हो रहे हैं, that inhibits any drone into entering that zone. चाहे वो consumer कितना भी कोशिश करे, they would not be able to enter it. So that was our real world problem, and so that we started to create a solution which was a hardware solution come a cloud based solution, जिसमें जब भी कोऑर्डिनेट्स वो मैप कोऑर्डिनेट्स में से होते हैं जो कि रिफ्रेश गवर्नमेंट ही कर रही है, वो वहीं पे ही ड्रोन को स्टॉप कर देगा, इंस्टॉल कर देगा, सो दैट जब फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं किसी ने धक्का मार के ले गया, ड्रोन तो अपनी वेलोसिटी से चला जाएगा, बट दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर न्यू कि आसपास ये जोन है, इट हैड टू स्टॉप द रोटर सो दैट इट डज नॉट एंटर एट ऑल. सो वो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. एंड व्हेन वी वेंट टू इलाहाबाद टू रिप्रेजेंट आवर कॉलेज, इट वाज अ 32 आवर्स टोटल, मतलब कंटिन्यूअस क्रिएशन. वहाँ पे वो AICTE के जजेस बैठे हुए थे, दे वर जजिंग, मल्टीपल कॉलेजेस से आए थे, एंड वी एक्चुअली वॉन दैट कॉम्पिटिशन. वी वर द फर्स्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. द गुड थिंग वॉज कि आई गॉट एंड वी गॉट रिकोगनाइज्ड, बट बेटर थिंग्स टू कम वर कि अगले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स जब हुए, नाउ दे हैव स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग पीपल कि अब ये आप क्रिएट भी करो, मैं आपको सीड फंड दे रहा हूँ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टअप फंड आपको दिया, आप इसको क्रिएट करो. So that was a very good opportunity for us. We are still connected with the Smart India Hackathon organizers, and I got an opportunity to visit Airport Authority Delhi में, जो बैक एंड से दिखाते हैं कि देखो इसका बता रहे थे हम, ये हैं प्रॉब्लम्स. Correct. Because we were a part of that. And you winning squad. identified that problem at a very basic scratch level. Correct. And that thing is now being used by the authorities Absolutely. of India, right? It's a part of the drones now. And it's a very, 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 बहुत real time project है जिसके ऊपर आप work कर रहे हो, because drones are like वो बहुत boom हो रहा है. बिल्कुल. And every, बहुत सारे startup भी drone के ऊपर अभी ड्रोन के चालू ऊपर काम हुए हैं. कर रहे हैं. Correct. And the defense segment of India are also working DRDO on is that. also working on it. Yes. So that was a great thing you started off. Yeah. Being a legacy business, business owner's son and a second generation entrepreneur, what was that market gap you found before starting a vertical into your own startup? Because हर बार आपके पास भी opportunity होती है that you can settle up at your business only, but still you chose that मेरे को ये path में नहीं जाना, I just want to go off-road. I want some hurdles in my path and I want to create something which is easy for the community or for the society, और वो अगर वो यूज़ करे तो उनके लिए भी एक easy way में it can be a solution for that. So what was that? स्पेसिफिकली ये गैप रिकॉग्नाइज करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है, वो बताता हूँ. स्ट्रेंज स्टोरी है. मतलब जब कॉलेज में था, आई हैड जॉइन फॉर द पर्पस कि मैं इंजीनियरिंग करके वापस फादर के बिजनेस में आ जाऊँगा. एंड डेफिनेटली कॉलेज के टाइम पर वी चोज द कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया. स्पेसिफिक रीज़न था उसके पीछे कि दिल्ली में है, and our residence and our office was in NCR. So we wanted accessibility of me to be able to come back at a time कि मैं ऑफिस में पार्टिसिपेट भी कर सकूँ. 4 बजे क्लासेस होती है तो यहाँ आ जाऊँ. सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस बिफोर आई ज्वाइन द कॉलेज इट सेल्फ. तो 4 साल कॉलेज भी चल रहा है लेकिन बिजनेस में भी हूँ. सो आई गॉट टू लर्न थिंग्स. आई वॉज अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन टीम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में थोड़ा पार्टिसिपेशन होता था. बट यही लगेगा सबको, या मुझे भी ये लगा था 4th ईयर के बाद आई विल बी अ फुल टाइम पर्सन इन माई ओन कंपनी. बट 4th ईयर में वो कॉन्वर्जेशन हुई when I said that now I'll join. I want to join the company and I want to run it. And I want to be a part of it. Yeah. So my father said, no, right now you have to sit in the placements, you have to go and get yourself experience. कहीं पर भी जॉब करो, I don't मतलब कि कहीं जाना है तुम्हारी अपनी मर्जी से चूज़ करो, बट गो गेट अ प्लेसमेंट आउटसाइड ऑफ हेक्स. तो ये कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी अजीब थी. मेरे तो दिमाग में आइडियाज़ थे बहुत सारे जो मुझे क्रिएट करने हैं. सो देन अचानक से थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई. मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था क्योंकि मैं प्लेसमेंट लोगों की लगवा रहा था, बट नाउ आई वॉज गेटिंग अ प्लेसमेंट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. फॉर्चुनेटली इन द फाइनल ईयर आई गॉट प्लेस्ड इन वन ऑफ अ वेरी गुड कंपनी, HSBC India, Technology India, and I worked there for 2 years. And I think I did well. I was being awarded some certificates, Rising Star, ये सब. I was being recognized for my talents, for my skills. And definitely I got to represent my company in Bahrain also, branches में जाके उनके साथ बैठ के उनकी problem statement conversation करना. Because they saw something कि he's not just a developer. He's kind of a designer or solution architect, you can say. So I sat with the product developers and the BAs to just brainstorm about कि इनकी problem कैसे solve करनी है, not just to codify it. And then code भी मुझे ही अब मेरी team को ही करना है. So that was a win-win situation.
तो वहाँ से मुझे लगा कि आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ अ ग्रेटिफिकेशन, सम काइंड ऑफ रिकग्निशन, सो आई एम डूइंग गुड. अब मैं जाता हूँ अपने बिजनेस में पापा से बात अभी करता मैं हूँ. टीम लीड बन सकता हूँ मेरे बिजनेस में. करेक्ट. या अब मैं जाता हूँ और बात करता हूँ, एंड आई हैड रिकॉग्नाइज सम ऑफ द गैप्स जो कि एक बड़े एमएनसी में या एक बड़े कॉर्पोरेट में थी, विच माई बिजनेस डिड नॉट हैव. करेक्ट. So I came back with a lot of ideas, which I think my father's goal was also कि जाए देख कर तो आए what is the company like और how the MNC works. तो वो चीज़ उन्होंने सिखाई, MNC ने सिखाई कि what are systems, why are they necessary, what a 150-year-old bank has come and is not changing at all right now has come to. तो उन्होंने 150 साल में जो चीज़ें सीखी, मैंने 2 साल में कम से कम उन्हें ऑब्जर्व किया. आई गॉट अ चांस टू ऑब्जर्व इट. सो वो जब मैं वापस आए, आई हैड गैप्स इन माई माइंड जो मुझे कंपनी में चेंज करने थे, जो मे बी मुझे प्रोडक्ट्स में भी चेंज करने थे. थॉट्स बहुत होते हैं. सो वो गैप्स थोड़े बहुत रिलेटेड थे टूवर्ड्स आवर सिस्टम्स दैट वी वर ऑफरिंग. 25-year-old बिजनेस है, तो सिस्टम्स जो ऑफर करे हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉलिश्ड प्रोडक्ट और अ सर्विस. लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे थे एंड इट हैड इट्स ओन बेनिफिट्स. बट अ वेरी स्पेसिफिक गैप इफ आई वुड से वॉज कि जितने भी आईटी सिस्टम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, दोज प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स आर ओनली एज गुड एज द पर्सन यूजिंग देम, द डेटा बीइंग फेड इनटू इट, द रेगुलरिटी बाय विच द डेटा इज बीइंग फेड, एंड देन द रिजल्ट कम्स गुड. अगर पर्सन ने डाला ही 1+1 है तो 2 ही निकलेगा. वो 4 एक्सपेक्ट करके चल रहा है, उसने डाला ही नहीं था +1 तो नहीं निकलेगा. दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग. तो वो एक गैप नज़र आया कि हमारे पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छे हैं, बट सम कंपनीज आर फेलिंग टू गेट रिजल्ट्स, बट सम कंपनीज आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स because that particular company or that particular organization उधर structure misplaced या structure present नहीं है to create a discipline कि ये system के तहत ही चलना है, इसी system को use करना है. And that was a gap. हम tools offer कर रहे थे या products offer कर रहे थे और ये नहीं offer कर रहे थे इसको use कैसे करना है, या ये restrict नहीं कर रहे थे कि ऐसे ही करो. So we had to build a culture of using our own products. सो वो एक गैप समझ आया कि वी नीड टू टैप इन टू द माइंड्स ऑफ ऑल ऑफ आर यूजर्स, नॉट जस्ट द ओनर्स और द MIS पीपल जो सिर्फ रिजल्ट लेना चाहते हैं, बट ऑल ऑफ द यूजर्स. एक छोटे से PN या गेट पे खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड को भी एक माइंडसेट इम्पार्ट करना है ऑफ हाउ अ सिस्टमैटिक प्लेस शुड लुक लाइक, एंड एवरी एक्शन यू डू इज एक्चुअली एस्केलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिजल्ट. तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के लिखना है, बट इट शुड बी ईजी ऑल्सो. बहुत टफ कर देंगे तो वो भी करेगा ही नहीं. So that's where the space of track HR of a product कि हम human resources को तो recognize करें अपनी company के, that came to be. We needed to create a system around the human resources of the company, not just giving tools to automate it, to fasten it, to get good MISs, but a tool for all the human resources. So, what's the cherry on the cake conversation after you told me about that? Most of the applications which have been founded by entrepreneurs, they sell that product. But you are the one who partners the business. You are into that thing that मैं तो आपको product दे रहा हूँ. It's everything on that customizable thing. मैं आपको customize भी करा रहा हूँ upon your requirements. I'm not telling you that you have to use it under that bound only, but I'm also giving you a customizable approach. So that's a very big market gap which you found. Because honestly, there are very big MNC companies on which you are currently aligning yourself, but they are not having that sort of a customizable thing which they are giving. We go with HRMS software. When we had a pre-talk before a podcast, you were aiming that मेरे को वैसा करना है that HR को ही replace कर देना है. Tech HR would be the one who will be managing everything. You are having that big market gap, but still you are having the verticals of payment gateway, incentives, holidays and all that stuff. मेरे को वो भी manage करना है. So that's a very big thing. You are just trying to align Tech HR in the position of a human resource. Correct. Right? So after that, how did you started telling the people up, उनको कैसे समझा रहे थे that there are CRMs, ERPs, but we are also having that same things with a different thing, और हम आपको customizable approach भी दे रहे हैं. So how were your initial seeding of Tech HR started? इसमें थोड़ा सा मैंने जो सीखा was through the time I was a part, unofficially I was a part of my company, Hex, I was working. Unofficially I learned कि मेरे बिजनेस या मेरे फादर के बिजनेस के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स क्यों नहीं छोड़ रहे. एग्जाम्पल मेरे फादर बहुत बार कोट करते हैं, द फर्स्ट 2 और फर्स्ट 3 पीपल हु हैव टेकन आर ERP सिस्टम्स आर स्टिल द फर्स्ट 3 हु आर यूजिंग इट. मतलब फ्रॉम 25-year-old कंपनीज, 25-year-old वी वर अ कंपनी, बट 25 साल से वही लोग आज भी हमारे साथ ही हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. एंड देन
आगे आगे भी बढ़ते रहे. So it's easy to scale up, but it's tough to sustain the Correct. market, right? Sustenance ही main problem थी. We are weak in one thing which I would honestly say is we are not good in marketing. We could not onboard a lot many people जो आजकल सिर्फ गोल होता है कि सबको onboard करते जाओ करते जाओ करते जाओ. We are totally opposite. My father's approach is totally opposite to it. कि जिसको onboard करो उसको full lifetime satisfy करना है. So that's his approach and that's why we are weak in marketing but very strong in design, product design, implementation. ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअली में एंड तक भी यूज़ हो रहा है और नहीं यूज़ हो रहा दैट मीन्स आई हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर और मे बी सम मॉडिफिकेशंस इनटू इट कि वो वाली कंपनी या वो वाला बिजनेस मॉडल भी इसमें फिट हो. Correct. मे बी इट्स अ ह्यूमन एरर, मे बी इट्स अ डिसिप्लिन प्रॉब्लम, मे बी स्ट्रक्चर नहीं है बट आई हैव टू क्रिएट सोल्यूशंस टू केटर टू देम. यहाँ से सीखा और ये समझ आया कि ट्रैक HR अगेन HRMS टूल्स बहुत अवेलेबल हैं. HRMS टूल्स थोड़े ऐसे होते हैं कि आपकी कंपनी में HR डिपार्टमेंट है या मे बी कोई एक पर्सन है अकाउंट्स पर्सन जो HR संभालता है, उसको टूल दे दो वो ये चीज़ें कर देगा. बट आवर अप्रोच वॉज डिफरेंट. वी डिड नॉट वॉन्ट टू एंटर इन टू दी HRMS स्पेस. वी वॉन्टेड टू क्रिएट कल्चर. वी वॉन्टेड कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं शुड बी अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली रिप्रेजेंटेड ऑल्सो. बिकॉज हमारा वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ही है, टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं. So every person to have an identity on a virtual platform where the structure and system is controlling every action and maybe motivating them towards the right direction by using rewards, recognition, ranks and scores, वो हमें build up करना था. And एक negative बात हमारी country के बारे में है, we are not core से disciplined people. Correct. We are a people who believe in the concept of jugaad, which is a very good concept in terms of getting efficiency out of things. But it is totally against the concept with Japanese culture and German culture follows कि we want discipline. चाहे 6 दिन लगे, you take 6 days time but deliver perfectly. हम 6 को 3 में करते हैं but maybe sometimes we lose on the discipline. क्योंकि हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं. हम 12 घंटे 14 hours also we put in place जबकि mind cannot work for more than 8 hours continuously. तो हमारी बाय नेचर कोर इज नॉट वेरी डिसिप्लिन. सो वी हैड टू क्रिएट अ सिस्टम जिसको मान के चलना है पहले दिन से पीपल विल नॉट बी डिसिप्लिन. वी हैव टू इम्पार्ट अ सिस्टम स्टेप बाय स्टेप क्रिएटिंग डिसिप्लिन, मे बी इन चेकिंग इन, मे बी इन जस्ट सीइंग कि आज मेरे लिए क्या काम है, टू डू लिस्ट को रिव्यू करना, मे बी इन जस्ट टाइपिंग अ शॉर्ट मैसेज कि ये काम हो गया एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. वो छोटे छोटे डिसिप्लिन क्रिएट करने से समझ आया कि ट्रैक HR नीड्स टू सर्व द रियल प्रॉब्लम. So that's what I learned and tried to impart in this particular project. Trek HR is going on a head-to-head position with Keka, right, which is currently booming the market in the domain of HRMS software. So what's the one thing which Trek HR is offering in compared to many industry giant things which they are not offering? As you told, कि हमारा approach हुआ that we are the partners. We are not selling you the application. We are giving you a sustainable thing that partner us with the HR software management system, then it could be great for you to manage many multiple things and you could also build a community from Trek HR. So what's that thing which you felt कि नहीं ये तो मेरे को करना ही है, इतनी बड़ी MNCs इतने सालों से कर ही रही है तो भी वो लोग को ये मार्केट गैप पता नहीं चला, and which Trek HR is currently presuming? Very honestly saying, Keka, Zoho, many other HR systems are definitely not our competitors because we are not competing for a same space. हम HR के लिए टूल बना ही नहीं रहे. What we are trying to create is, we are trying to, जैसे हमारी कंपनी का मोटो भी है, we are technology partners for your business. We don't want to create just the tools. We don't want to just give you subscription कि आप ये use कर लो, use अच्छा करोगे अच्छा है, बुरा करोगे बुरा है. We don't want to do that. We want कि आप जो use कर रहे हो उससे result भी आए. ERP systems definitely हमारे 25 साल से चल रहे हैं, but हमें gap दिखाई दिया कि ERP ही ढंग से use नहीं हो रहा because the manpower is not disciplined. That's why we created a totally new project, totally new product to cater to business automations on a larger level. So that's where, or that's the unique part of Track HR. We are not creating an HRMS app. It's not an HRMS solution. It's a place where all of your human resources, the true definition of HR, are in one place. Correct. हम चाहते हैं सारे human resources आपस में interact करें. And I think that's the best thing that we have created. A very simple metric that we have observed since 2 years of our usage. हमारे जितने भी users हैं Track HR के, at least 30 to 35 minutes daily they are interacting with our app. Okay.
every organization has all of their employees on this platform, and every employee is interacting with our app for 30-35 minutes, which is in a day. Yeah. Which is very strange for an HRMS system, क्योंकि HRMS में तो लीव डालेगा जब लीव होगी, अटेंडेंस डालेगा जब अटेंडेंस होगी, और वो भी HR ज़्यादा काम करता है. एक एम्प्लॉय या एक टीम मेंबर, मैं भी जब MNC में था, I did not open my payroll system that oftenly. They are not aligned with that because you are having double the workload, but still a person is investing his 30 to 35 minutes in an application. But you know what's the one thing which I noticed in the big giants like Zoho, Keka and Odoo is that they are just a software. They are not having that creative side. But TrackHR is having a UI in that better way that it feels कि नहीं कुछ अलग आएगा आज. For example, if you are having new thoughts every day, if a person will open the app, उसको लगेगा कि नहीं आज मैं खोलूँगा तो कुछ और मेरे को देखने मिलेगा. So what's that something that your creative head is continuously investing his time in making the application more usable for, you know, laymen who are not into human resource but they are just employee for the company. Very rightly pointed, I would say. See, जो मैंने आपको बोल दिया एक मेट्रिक 30 से 35 मिनट डेली एक पर्सन हमारी ऐप पे इंटरेक्ट कर रहा है. Correct. इट्स नॉट वेरी इजी टू अचीव. Yeah, exactly. करने को तो आज भी इंस्टाग्राम क्या चाह रहा है कि हमारा इंटरेक्शन मैक्सिमम हो ना व्यूअर से, रिटेंशन, वो छोटे छोटे रील्स बना रहा है, एंड दे आर फिडलिंग विद आवर माइंड्स बेसिकली टू गेट सम माइंड स्पेस. हमने TrackHR में यही नोटिस किया. हमें ये पता था द कोर प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट डिसिप्लिन्ड. एंड डेफिनेटली अनदर प्रॉब्लम वॉज पीपल डोंट वॉन्ट टू पुट मच ऑफ द अटेंशन एक छोटे स्पैन में. वो सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम आपको दे सकते हैं, विच इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ शॉर्ट दीज डेज. But you know what's that? When you add up 30 seconds on a longer run, it 3 घंटे का इंस्टाग्राम होता है हमारा. हाँ हो जाता है. daily So का. हमको लगता है कि मैं रील 30 सेकंड की 10 ही बार देख रहा हूँ, बट वो अपने मैनेज करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. करेक्ट. So I guess So it's a that was the chain. pinpointed which It's you a chain. focused on. Yeah, it's तो a chain. ऐसा ही हुआ. तो एक छोटा सा फीचर ही बताता हूँ TrackHR का. Correct. TrackHR के ऊपर इंटरेक्शन लाने के लिए वी जस्ट गिव अ स्मॉल अलार्म एवरी मॉर्निंग. जब उसका 9:30 बजे का चेक इन टाइम होता है, दिस इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. सुबह 9:30 बजे का अलार्म आता है, यू स्नूज इट एंड इट पॉप्स द होम स्क्रीन कि आपका चेक इन का टाइम है. डेफिनेटली ऑफिस एंटर किया होगा तो चेक इन कर देगा, नहीं तो लीव मार्क कर देगा. एज सुन एज ही चेक्स इन, 30 सेकंड का जॉब ओवर, उसको एक और पॉपअप आता है कि आज के लिए आपके ये टास्क अलाइंड है, अभी देखना है, अभी देखो नहीं तो बाद में देखो. वो वहाँ से क्लिक करता है मेरे अगले टास्क पे, क्योंकि मेरे मैनेजर ने कुछ एक अजीब सा टास्क लिखा होगा. उस पर जब क्लिक करता है उसकी एक डेडलाइन और फोटोग्राफ या एक कस्टमर के थ्रू एक रेटिंग आई होती है कि पिछले में 3/5 थी, इस बार थोड़ा सा बेटर करो, या डेडलाइन ये है. वो हल्का सा और इंटरेक्ट करता है जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप कि सर ये क्या कर दिया, ये ऐसा कर दिया. एज सुन एज ही इंटरेक्ट्स, सेकंड पर्सन इन चेन गेट्स अ नोटिफिकेशन और अ पुश नोटिफिकेशन कि देखो सोनाल ने कुछ भेजा है आपको. Just like WhatsApp does, just like Instagram does, कि somebody shared a reel. Communication is the thing which you are also involving in integrating. Absolutely. Communication, क्योंकि human resource को एक virtual office देना है. Exactly. तो इसके अलावा फिर बात क्यों करें किसी और पे? इसके अलावा फिर टास्क क्यों एसोसिएट करें किसी पे? यहीं पर ही सब कुछ होगा. तो वो छोटे छोटे जो चेन इन लिंक है ना, चेक इन से पहला काम से दूसरा काम से तीसरा काम, एंड आफ्टर दैट वर्क इज डन, ही इज बीइंग अवॉर्डेड और क्लैप्ड फॉर हिम कि यार 5 on 5, गुड वर्क, गुड जॉब. छोटी छोटी चीज़ों पे ये एक मोटिवेशन दिखाता है कि इफ आई एम यूजिंग TrackHR, आई एम बीइंग रिकॉग्नाइज नॉट जस्ट बाय द ऐप. ये ऐप तो ओनर के पास भी है ना. उस महीने में मैं टॉप 1 आऊंगा और मेरी पूरी कंपनी जिसमें 2000 लोग हैं मैं दिखूंगा, जिसमें 250 लोग हैं मैं दिखूंगा, चाहे 5 लोग भी हो मैं 1 था. उसकी जो रिकॉग्निशन की सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है वो उसको एक एक छोटे टास्क अचीव करके दिख रही है, एंड दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप विद इन हिमसेल्फ कि ये काम मेरा ही था, इसके अवार्ड भी मुझे ही मिल रहा है, बेनिफिट भी मैं ही लूंगा. तो ये छोटी छोटी चीज़ों से वो एक पैटर्न क्रिएट हो गया जो हमने ऑब्जर्व किया कि पीपल वांट टू इंटरैक्ट विद TrackHR नाउ, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. 35 मिनट्स इज अ बिग टाइम, वेरी बिग टाइम. ये रोज दे रहे हैं बिकॉज दे आर सीइंग कि मेरे को क्या आज मिला, मेरा क्या आज काम है. और वही एक यूनिक चीज़ बन गई हमारे ऐप के बारे में. इट्स नॉट एन HRMS सिस्टम और अ टूल, इट्स अ प्लेस वेयर यू आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ गेम. इट्स अ गेमिफिकेशन ऑफ वर्क प्लेस का कंसेप्ट. मैं रोज़ ऑफिस जा रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, लेकिन मैं रोज़ ऑफिस जा रहा हूँ और मैं गेम खेल रहा हूँ. दैट्स अ वेरी बेसिक चीज़ जो लोग ढूंढ रहे होते हैं. उनको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहिए. मेरे को आज मैंने किया, बहुत लोग जाते हैं ऑफिस में 6:30 बजे वापस आए थे, क्या किया पता नहीं, क्या किया अगले दिन भी नहीं पता होता मैंने क्या किया. बट व्हेन यू आर डूइंग इट इन अ वर्चुअल प्लेस जहाँ पे आपको एक ही चीज़ का और हाँ ये 2 काम तो कर लिए थे, दिख रहे हैं मेरे ये टिक, ये 3 चीज़ें कल के लिए पार्क भी करके आया हूँ, आई रिमेंबर इट, और कल सुबह 9:30 बजे वही याद दिला देगा मेरे को पॉपअप से. तो दैट इज अ वेरी बेसिक टर्म, गेमिफिकेशन ऑफ योर वर्क प्लेस. लोगों को गेम खेलने में मजा आ रहा है. When you appreciate someone, right? If I just give you a normal example कि मैं हर बार एक कलीग को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, वो नोटिस करेगा. He'll also see कि अभी नेक्स्ट टाइम मेरे को अप्रिसिएशन कब मिल रहा है. So when your software gives you an sort of an appreciation,
the workforce or the colleagues who are working for you gets excited कि मैं और अच्छा काम करता हूँ, that I'll get appreciation. And secondly, you're integrating the whole channel. The hierarchy is so phenomenal that the founder is also able to see the appreciation, and a lower level intern is also able to see the appreciation level. So how did you channelize that all thing? See, it's very easy to have a software around the colleagues, but it's very tough to manage the channel and the hierarchy of a company. So what was the technicality behind that? The technicality came to be when we started implementing TrackHR. हमने UI बनाया, इंटरफेस बनाया, और UI भी बहुत ऐसा रखा कि ग्रीन बटन है चेक इन, रेड बटन है चेकआउट, कि लोगों को कलर से ही समझ आ जाए कि मैंने अब क्या करना है. Correct. इंग्लिश ना पढ़नी आती हो, नो मैटर. कलर्स एंड UI बहुत सिंपल रखे कि टॉप टू बॉटम कोई भी इसको You यूज played कर with the सकता है. psychology, honestly. करेक्ट. A layman who is just a peon working, उनको भी वो भी पता कर चले कि सकता मेरे को इंग्लिश भले नहीं आती, but I'm able to see from the colors. द पैटर्न्स एंड द कलर्स, और Correct. स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है तो मुझे इस पे तो क्लिक करना है, वैसी Correct. चीजें थी. बट व्हेन वी स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग पीपल, हमें ये समझ आया, इफ फॉर अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एंड टॉप मीनिंग एक ओनर को भी इस प्लेटफॉर्म पे होना बहुत जरूरी है. HRMS में मैंने किसी ओनर को तो नहीं, HRMS होता का ही पार्ट नहीं, नहीं देखा. correct. Because owner is a part of this particular application, then the second person in charge would say, यार ये तो ओनर ही प्रमोट कर रहा है, that means अच्छा है, या कम से कम रिकॉग्निशन तो मिलेगी, ओनर नहीं रिकॉग्नाइज किया इसे. देन द थर्ड पर्सन ज्वाइंस, देन द फोर्थ पर्सन ज्वाइंस. और जब नीचे लेवल वाले लोग आते हैं, दे सी कि ओनर भी मेरे लिए एक्सेसिबल है इन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, उनको लगता है कि यार ये एक ऐसा टूल है जब मैं किसी के पास भी जाके बात कर सकता हूँ. एंड वी हैव सीन एग्जाम्पल्स इन आवर ओन कंपनी इनफैक्ट, कि एक बहुत नीचे 4th लेवल या 5th लेवल का कोई पर्सन जो एक इंटर्न या एक ट्रेनी टाइप्स था, उसके दिमाग में भी एक बड़ा बग या एक बड़ा कॉन्वर्जेशन आया. ही डायरेक्टली रेज्ड अ टिकट टू द ओनर विच इज़ माई फादर, बिकॉज माई फादर हैज़ ओपनली ब्रॉडकास्टेड कि आपको बहुत एक मेजर कुछ भी ग्लिच मिलता है, आई एम ओपन टू आइडियाज़, बट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर बग. Correct. आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है. तो पीपल मतलब एक सजेशन बॉक्स छोड़ दो तो नहीं डालेंगे. बट ऑन TrackHR ओनर भी जब एक्सेसिबल है ना, ओनर के लिए भी टिकट्स खुल रही हैं. So it's a one-to-one conversation between a One-to-one. trainee and the founder, founder. right? So It's an open platform. Exactly. So उसमें क्या होता है that when you want to have a physical conversation or when you're emailing the founder, you feel कि it's a thing कि उसमें थोड़ा time लगेगा. As he's having bunch of different things to Right. focus on, he'll not focus on my idea. Right. But after doing that, you are just sending a ticket to the owner कि भाई तू देख ले. And if that spike up can उससे अगर कंपनी को फायदा हो रहा है, then I guess that this platform can also gain up new ideas. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ भी. पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी होती हैं व्हेन ओनर बिकम्स ओपन टू द टीम, बट यूजुअली बहुत बिजनेस में ओपन होते नहीं ओनर्स, बिकॉज देन एवरी ब्लेम ऑल्सो स्टार्ट्स कमिंग ऑन देम. ऐसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हुआ कि व्हेन द चैनल वॉज ओपन, TrackHR छोड़ देते हैं, व्हेन जब हम चैनल ओपन करते हैं कि मेरे पास आओ सारी चीज़ें बोलो, वो सारी चीज़ें टीम ऐसे डालने लग जाती है, सर दिस इज़ योर अकाउंटेबिलिटी, दिस इज़ योर कंपनी, यू हैव टू फिक्स इट. वो देखो वहाँ लाइट भी नहीं चल रही, आपकी कंपनी आप फिक्स करो. ये एक प्रॉब्लम ओनर्स की हो जाती है और उनको लगने लग जाता है यार मैंने एक अपने लिए ही बॉटलनेक क्रिएट कर लिया, क्योंकि एट द एंड ओनर इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ एवरीथिंग. क्लाइंट का ऑर्डर लेट हुआ वो भी ओनर को ही आंसर करना है कायदे से. तो बट दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव केस आई वुड से. बिजनेस ओनर्स इसीलिए रिफ्रेन करते हैं ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, एनी सच प्लेटफॉर्म. बट वॉट वी नोटिस्ड अ वेरी पॉजिटिव साइड विच माई फादर टोल्ड मी, कि बहुत बार ऐसे काम मेरे डेस्क पे छोड़ जाते थे बहुत लोग कि सर ये आपने चेक साइन करना है, ये डॉक्यूमेंट साइन करना है, और छोड़ जाते थे. It's very haphazard. मतलब केओटिक होता है कि सर मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कर देना, और बोल के निकल जाए, मतलब अकाउंटेबिलिटी इज नॉट नाउ ऑन दी ओनर. बट माई फादर हैज़ नाउ मैंडेटेड, TrackHR पे टिकट नहीं आई ना, मैं कोई काम नहीं करूंगा, मुझे इस पे एक्चुअल ट्रेल चाहिए, ये डेस्क पे किसने और कब रखा था, बिकॉज TrackHR इज जस्ट गिविंग द अकाउंटेबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. अभी वो रख के छोड़ गया, कुछ सही है कुछ गलत है, क्वेश्चन पूछना है, वो बंदा ही नहीं है. बट इफ दैट पर्सन हैज ओपन द टिकट और अ टास्क ऑन TrackHR, वी कैन चेक द होल ट्रेल, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, क्यों आया, और उसके ऊपर रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस मार्क करना, उसकी अप्रिसिएशन, और उसी के लिए एक नेगेटिव स्कोर भी है कि आप ऐसे काम मत छोड़ के जाया करो. सो ओनर्स आर इंसिस्टिंग कि मैं सिस्टम से ही चलना चाहता हूँ, एंड दैट्स द सक्सेस स्टोरीज ऑफ TrackHR, जहाँ पे ओनर सिस्टम को पहले एक्सेप्ट करता है, एंड देन वो बोलता है नहीं मेरे पास ऐसे दरवाजा खटखटा के मत आओ अंदर, मैं 6 घंटे के लिए बैठता हूँ, ऐसे 10 घंटे तुम मेरे पास ही बैठे रहोगे. यू ओपन अ मीटिंग इन TrackHR, यू सिट विद मी, आई विल अप्रूव द एजेंडा और आई विल से आई एम अवेलेबल और नॉट, अदरवाइज आई एम नॉट देयर. You want a task done by me, you open a ticket. I have 10-15 tickets to be done today. मैं इन 15 में से आपका काम भी कर दूंगा, और जैसे ही मैं करूंगा आपको पता लग जाएगा, चक्कर मत काटो. ओनर के लिए भी ये एक बून है. You've also integrated the
video calls or Correct. chatbots in Correct. Track HR also. करेक्ट. हमारा कंसेप्ट अगेन वही है कि अगर हम वर्चुअल वर्क प्लेस बना रहे हैं, हमें सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं एक नॉर्मल ऑफिस में उसको इसमें लाना है. हम चाहे फ़ोन कॉल कर रहे हैं, हमने इसी में लाया. हम चाहे व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप छोड़ो, इसी में ही कम्युनिकेशन करो. हम चाहे ईमेल कर रहे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, इसी में ही करो. एंड डेफिनेटली कोविड के बाद सबने हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट किया है. गूगल मीट, जूम्स बहुत ज़्यादा So प्रमोट हुई हैं. integrated Teams, Google Meet, Zoom, करेक्ट. Keka. Not Keka, I mean, yeah, just the example of HRMS software Correct. into a single stream. a single stream. और Right. वो भी इस सेंस में मैनेज, not just creating a meeting is the end of it. Your attendance is also being marked in this platform. बहुत Correct. कंपनीज में ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, 25 लोगों को जाना होता है, निकलते सिर्फ 18 हैं जिन्होंने लिया. कैसे? क्योंकि जाते हैं, अटेंडेंस पेपर पे साइन हो जाती हैं. बट इफ यू आर पार्ट ऑफ ट्रैक एचआर, योर QR कोड इज ऑथेंटिकेटिंग कि आपकी अटेंडेंस थी थ्रू आउट द मीटिंग, यू आर देयर. फिर जब आप निकलते हो, द कोऑर्डिनेटर गेट्स अ नोटिफिकेशन दिस पर्सन हैज लेफ्ट. सो वी आर नॉट जस्ट इंटीग्रेटिंग, वी वांट दैट सिस्टम टू बी अकाउंटेबल. क्योंकि वो पर्सन अगर 4 घंटे एक मीटिंग में डाल रहा है, एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो नहीं डाल रहा, उसके पास दिन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है टू डू समथिंग एल्स. एंड दैट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर टाइम, ऑफ योर एफर्ट्स इन दिस कंपनी. सो ऑटोमेट भी करना है, इंटीग्रेट भी करना है, बट पेन प्रॉब्लम वही रखनी है, डिसिप्लिन लाना है इन अ वेरी केओटिक एनवायरनमेंट. एक स्टार्टअप जिसमें सिर्फ 6 ही लोग हैं, HR डिपार्टमेंट तो दूर की बात, सिस्टम और मैनर्स भी नहीं होती. बट टू क्रिएट अ सिस्टम, दे स्टार्ट विद ट्रैक एचआर फ्रॉम डे 1 कि पहले दिन से ये लगा लो, जो ये सिस्टम बता रहा है ना, ये फॉलो कर लेते हैं. आफ्टर 6 months 8 months दैट कंपनी इज नाउ स्केल्ड ऑल्सो. 15 लोग भी आ गए और पहले 5 लोग से 15 लोग तक सिस्टमैटिकली गए हैं, विच इज Aligned हो जाते हैं वो लोग. अलाइंड हो Right. जाते हैं. Correct. कि जूम कर रहे हो ठीक है, लेकिन ट्रैक एचआर में एक मीटिंग खोल के जूम की लिंक पे जाओ, यहीं से खोलो, बिकॉज इट्स रिकॉर्डिंग योर डेज टाइम, इट इज रिकॉर्डिंग योर एफर्ट्स. तो वैसा इंटीग्रेशन, सिर्फ इंटीग्रेशन ही नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन के साथ अकाउंटेबिलिटी वॉज इंपॉर्टेंट. और हमने सारे ऐसे काम, कोई हमें काम रिकॉग्नाइज भी करता है ना, सर ये वाला काम इसमें नहीं है, आवर टेक्निकल टीम्स प्रायोरिटी इज कि इसको भी किसी तरीके से ट्रैक एचआर में लाएं. we should have everything present in a physical office in this virtual workspace for all. If you are looking 3 to 5 years ahead for Track HR, आप सोच रहे हो that you will be replacing the human resource who are working at the company. आप मैनेज करोगे पेरोल का भी, आप मैनेज करोगे इंसेंटिव्स का भी, यू विल ऑल्सो मैनेज द रैंकिंग ऑफ द एम्प्लॉयज एंड मेनी मोर. बिकॉज सी AI इज बीन जनरेटिंग मेनी मोर थिंग्स एंड वो बहुत लीनियर वे में आगे जा रहा है. यू आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन योर एप्लीकेशन, राइट? सो आर यू विलिंग टू डू कि टेक HR ही आप एक बार एनरोल कर दो, यू विल नॉट हैव एनीथिंग, आपको ह्यूमन रिसोर्स हायर नहीं करना पड़ेगा, वी विल बी दी ओनली वन हु विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू इन अ फ्लॉलेस वे. So what are your views for Trek HR after 3 to 5 years, or in the year of 2030 you will be integrating something new? Right now I'm against this idea. Okay. Or we are all against this idea because history has taught us, सारे जो बिजनेस ऑपरेशंस या सारी जो चीज़ें बनती हैं या कुछ भी हम ऑफर करते हैं एज अ सर्विस, इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट दैट इज मेड, इट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाउ इट वाज मेड. एंड being a part of a country which is very rich in skilled people, very rich in population first of all, and skilled population, many countries are recognizing our people's talents. एक ऐसी कंट्री में हम एक ह्यूमन के टैलेंट को सरपास करने की बात क्यों कर रहे हैं? ज़रूरत ही नहीं है. वी आर चीप, we are very talented, we deliver very good results, so why do we need to replace it as of now? That's not the concept here. But the concept is, or the acceptance is, every business is a human centric business. जो काम भी आप सोचते हो उसके सेंटर में एक ना एक इंसान होता ही है. चाहे आप एक वर्चुअल एजुकेशन क्लास ही ले लो, उसकी भी रिकॉर्डिंग करने के लिए एक इंसान होगा, एडिटिंग करने के लिए एक, और पोस्टिंग के लिए एक इंसान. सारे बिजनेस ह्यूमन सेंट्रिक तो हैं ही, ये हमने एक्सेप्ट किया है, एंड दैट इज व्हाट वी आर प्रमोटिंग कि आप ह्यूमन सेंट्रिक ही रखो. बट ह्यूमन शुड नॉट गाइड हाउ द कंपनी शुड फंक्शन. सिस्टम को ह्यूमंस को गाइड करने दो और ह्यूमंस को सिस्टम चला के कंपनी चलाने दो. ये हमारा कंसेप्ट है. So aligning both of them for a better cause. Absolutely. ह्यूमन सेंट्रिक तो रखना ही है. टैलेंट उसी के पास है, क्रिएटिविटी उसी के पास है, स्किल्स उसी के पास है, बट उसकी सारी स्किल्स, सारे एफर्ट सही डायरेक्शन में लेके जाना सिस्टम का काम है. यहाँ पर ऑटोमेशंस आती हैं और यहाँ पर ही ट्रैक HR, ERP, CRMs एंड IoT डिवाइसेस, वी ऑल्सो डू मशीन ऑटोमेशन. तो वो डिवाइसेस सिर्फ यहाँ पे असिस्ट करने आते हैं. देयर इज अ वेरी यूनिक कंसेप्ट कॉल्ड ब्लैक बॉक्स इंडस्ट्री, which Xiaomi has kind of achieved in Japan, and some people are adopting it कि उस इंडस्ट्री में एक भी लाइट बल्ब नहीं चलता. It's a dark industry. That means to say is
अंदर जब लाइट नहीं है तो इंसान देख नहीं सकता, तो इंसान नहीं कर रहा होगा, या जो भी कर रहा होगा उसको पता है बस यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, नो मार्जिन ऑफ एरर। ऐसी इंडस्ट्री अचीव किया उन्होंने, बिकॉज बाय कोर दे आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल, दे वॉन्ट वेरी डिसिप्लिन थिंग्स इन लाइफ। दे आर नॉट लाइक कि आज गोलगप्पे खाए तो इसके साथ मैं आइसक्रीम भी मिला के खा लेता हूँ। दे आर नॉट बॉर्न दैट वे, बट इंडियंस दे वॉन्ट जुगाड़, दे वॉन्ट क्रिएटिविटी, दे वॉन्ट मिक्स एंड मैच एवरी नाउ एंड देन। सो इसी वजह से इंडियन मार्केट्स में इंडस्ट्रीज ऐसे नहीं चलती कि सब ऑटोमेट कर दो, वो ऐसे चलती हैं कि ऑटोमेशन इतनी करो कि इंसान का सिस्टम बन जाए। इंसान रिप्लेस करना अभी चॉइस ही नहीं है, अभी तो कर ही नहीं सकते, बट मे बी इन 10-15 years डाउन द लाइन the people will not be replaced, but the skills will be replaced. Correct. So layman skill khatam ho you know, jayenge. on that, when I had a podcast with the founder of Pet Puja, Mr. Parthiv Patel, what did he told is that when people are telling you the myth that AI will replace the humans, AI will replace the physical presence of the worker who are doing it, it's not that way. What's the thing is that if you are sustainable with AI, then you will be on your job. अगर आप AI के साथ sustainably नहीं रहते हो, then you will feeling कि नहीं मेरे को AI भी नहीं आता बट मेरे को मेरा काम करना है, तो आपको निकाल ही देंगे. But if you are parallelly integrating artificial intelligence for your cause and you are working with your, आपने जैसे बोला कि human interrogation या उनका भी interaction आ रहा है साथ में parallelly, he is saving his time by using AI, then you are master at your job, right? So that's the thing which is gonna happen. People feel कि AI, but they don't know what AI basically is. वो जॉब नहीं खाने वाला, बट आपको उसके साथ अलाइन करना पड़ता है. Absolutely And correct. that's what's the main goal for Trek HR and for Sonal himself. Yes. That I want to integrate both of things together Correct. on a positive way कि मैं किसी की जॉब भी नहीं खा रहा और वो उसको हेल्प भी कर रही है. Absolutely right. Our approach is always towards the business. I am not very good in terms of analyzing what is good for the employees as of now, but which is good for the business, इंसान के लिए या एम्प्लॉय के लिए अच्छा होना चाहिए. That is what my goal or our company's goal is. That's why बहुत एक छोटी सी टर्म बोलो, we target the 5 M's in any business. कोई भी बिजनेस को आप 5 M's में तोल सकते हो या उसको मैनेज कर सकते हो. मैन, मटीरियल, मशीन, मदर अर्थ एंड मनी. इन 5 एरियाज को आपने ट्रैक, ऑटोमेट, मॉनिटर या सिस्टमटाइज कर दिया, आपका बिजनेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. सो आवर गोल इज ऑल ऑफ दीज 5 M's वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, मे बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, मे बी आपने कोई बाहर का टूल लिया हुआ है, इंटरेक्ट इसके साथ हो रहा है, या फिर कुछ प्रोसेसेस आपके अभी ऑटोमेटेड नहीं होंगे, ह्यूमन बेस्ड चल रहे होंगे, बट टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दोज इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म और मे बी इन अ सिंगल स्पेस, ये कोऑर्डिनेट करेगा. इन नेक्स्ट 10 years ये बताएगा कि बिल आते गाड़ी निकल जानी चाहिए, या गाड़ी निकलते ही पेमेंट की पेंडेंसी खड़े हो जानी चाहिए, या बैंक में रिसीव होते ही सप्लायर्स को ऑटोमेटेड चली जानी चाहिए. बहुत छोटी छोटी चीज़ें AI ये कंट्रोल कर सकता है. AI ये वाला स्किल या ये वाली स्किल को रिप्लेस कर देगा जो अकाउंटेंट्स कर रहे हैं. बट जैसे कि पहले भी देखा हमने, हमारे ज़माने में तो कंप्यूटर्स पहले से ही थे, वी वर बॉर्न विद कंप्यूटर्स, बट पीपल एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया कह रहे थे कि यार कंप्यूटर्स आ गए, जॉब खत्म, जॉब खा जाएगा, मशीनें जॉब खा जाएंगी. पहले हम हाथ से बनाते थे एक पार्ट, आज मशीन है और कंप्यूटर बनाएंगे. इज दैट व्हाट हैपेंड? No. अपस्किलिंग हुई, इंजीनियरिंग कोर्सेज आए, पीपल आर नॉट यूजिंग मशीन्स, हैंड मशीन्स, बट पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर, CNC मशीन्स, ऑटोमेटेड मशीन का यूज कर रहे हैं सेम पार्ट डिलीवर करने में. सो अपस्किलिंग हुई और वही सेम बल्कि और मैन पावर बढ़ गई. Correct. क्योंकि स्केलेबिलिटी हो गई. एक इंडस्ट्री जो 5 ही मैन पावर को पाल सकती थी, अब now वो they're 50 scaling को up. कर सकती है, Correct. बिकॉज ऑटोमेटेड मशीन्स ने बिजनेस को भी मतलब बहुत ज्यादा एनकरेज किया. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड. AI इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपेरिजन की कंप्यूटर आएंगे तो जॉब जाएगी, AI के बारे में भी ये सोच रहे हैं. बट मेनी कंपनीज आर स्केलिंग अप देयर ऑपरेशंस यूजिंग द टूल्स फ्रॉम They're AI. scaling up on a very big level. Correct. They're scaling up on the range of 5x, 10x, right? See, Correct. if you are aligned with a skill which is giving AI से जैसे एक skill आ रही है and you are aligning with that skill, then you are going on a very top. But आपको पता ही नहीं चल रहा है and you are doing on the same thing जो पहले आप 10 साल पहले कर रहे थे, then you obviously lost your job, right? So that's the very pinpoint thing which you've been focusing on कि आप job भी नहीं खा रहे हो and still you are aligning at many corporates. So what is any success story which you've been doing at Trek HR जो आपको एक reward जैसा लगा when you delivered or you are a partner at that specific firm और उनको लगा कि I've been using it from day one and after using your application अभी मैं एक ये certain level पे हूँ. So what was that experience or who was that company? Every success story is unique in its sense. So बहुत बार ऐसा होता है, I have been asked about some brand names and the user sizes. अगर मैं 5000 यूज़र का एग्जाम्पल लेता हूँ, वो 5 यूज़र वाली कंपनी सोचती है यार ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ 5000 पे एप्लीकेबल है. सो दैट्स नॉट हाउ ट्रैक HR और सिस्टम वर्क्स. बट डेफिनेटली आई गॉट योर कंसर्न. 2 केस स्टडीज़ बताता हूँ.
अ वेरी डिफरेंट और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का केस है और एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का केस है. ऑल ऑफ देम आर सक्सेस स्टोरीज, तभी ट्रैक एचआर यूज कर रही हैं, बट दीज आर वेरी पिक्यूलियर इन देयर ऑपरेटिंग मैनर. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ब्लू कॉलर्ड लोग जो लेबर्स होते हैं या फिर जो हेल्पर्स होते हैं, विच आर यू कैन से नॉन स्मार्ट वर्कर्स, जिनके पास फोन्स ही नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, समटाइम्स मोर देन 80-90% ऑल्सो. और 10% स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो कि वाइट कॉलर्ड हैं, जो कि ऐसे प्रोसेस को समझ पाते हैं, जो सिस्टम पे अलाइन कर सकते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के केस में वो यही सोचते हैं सिस्टम लाएंगे भी तो सिर्फ इन 10 लोगों के लिए या 25 लोगों के लिए आउट ऑफ द 100 पीपल और 200 पीपल वी हैव. सो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में ट्रैक एचआर क्रिएटेड काइंड ऑफ अ सिस्टम. ब्लू कॉलर्ड लोग को नहीं ऑनबोर्ड कर रहे, बट एवरी लाइन और एवरी पर्टिकुलर ग्रुप हैड अ रिप्रेजेंटेटिव इन टर्म्स ऑफ अ सुपरवाइजर. वो सिस्टम का पार्ट था. हमें क्या करना है, हमें सबको ट्रैक एचआर का यूजर या किसी का यूजर नहीं बनाना, हमें कंपनी को सिस्टम से चलाना है. ट्रैक एचआर जो बोले या सिस्टम जो बोले वही एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इज आवर गोल. यही हमारा गोल था और अभी भी है. मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ने हमें ही बोला कि आप ब्लू कॉलर लोगों को तो बिल्कुल मत लाओ, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, वो अपना काम छोड़ के फ़ोन थोड़ी देखेंगे. उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को लाया. उसके बाद उन्होंने क्या अचीव किया, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में एक ही काम डेली रिपीट होता है या बहुत फ्रिक्वेंसी से रिपीट होता है. और क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी MRM मंथली रिव्यू मीटिंग्स एक की बजाय 4-4 घंटे की जाती हैं. और एंड में यही निकलता है 4 घंटे हमने क्या बात की, इसकी प्रॉब्लम सुन ली, इसकी भी सुनी. बट नाउ आफ्टर द सिस्टम हैज़ बीन इन देयर वर्क प्लेस, वो छोटी छोटी चीज़ें मेजर कर रहा है. नाउ बिफोर एवरी MRM दे आर जस्ट फाइंडिंग द एक्सेप्शंस फ्रॉम ट्रैक एचआर, और उन 5 एक्सेप्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं. दे हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट स्कोरिंग मैकेनिज्म फॉर देमसेल्व्स इन ट्रैक एचआर, जिसमें नेगेटिव स्कोरिंग है. मतलब दे डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट टू 0 to 100. वो नेगेटिव कह रहा है कितने भी जाने दो, कोई भी एक डेडलाइन मिस हुआ या पार्ट में क्वालिटी डिफॉल्ट आया या फिर कस्टमर ने कुछ कंप्लेंट करी कि अच्छा नहीं था, स्कोर्स नेगेटिव होते जाते हैं. दे जस्ट पिक टॉप 5 और टॉप 10 नेगेटिव स्कोर्स या एक्सेप्शंस एंड दे सिट इन द MRM एंड जस्ट टॉक विद देम, दे प्रमोट देम. उन्हीं 10 का सॉल्यूशन हर महीने या हर हफ्ते उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, महीने के बजाय हफ्ते में कर दिया. बट टॉप 10 सॉल्यूशन या 80-20 रूल लगाए, टॉप 20% का सॉल्यूशन 80% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है. दिस इज एक्चुअली ट्रू एंड दिस हैज़ बीन अ गुड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम देम कि हमारा तो बहुत टाइम बच गया, हम रियलाइज नहीं कर रहे बट बहुत बच गया. इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जहाँ पे रिपीटेड प्रोसेसेस बहुत हो रहे हैं, KRAs KPI इसी में डिफाइंड है, इसी से ही मेजर करके सिस्टमैटिकली आ जाते हैं. कभी कभी तो आने से पहले उसको ही दिख जाते हैं. एंड ही इज द पर्सन इज सेल्फ करेक्टिंग इन हिज नेचर. वो MRM से पहले ही वो सारे क्लोजर्स मार्क करके आता है. मतलब उसका कुछ एक्सपेडाइट होता ही नहीं, वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में ही नहीं आता. एक बार आ गया अगली बार नहीं आता वो, तो सेल्फ करेक्टिंग है. क्यों बार बार मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो. तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक एग्जाम्पल था. बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल एक सर्विस बेस्ड यूनिट का एग्जाम्पल ले सकते हो आप. डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या फिर एक कोवर्क या फिर हैंडवर्क जैसी कंपनीज जो कि मैन पावर रखती है जस्ट टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज, देयर इज नो प्रोडक्ट इन्वॉल्व. उन लोगों के लिए दिस बिकेम अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कि उनको अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करना होता है. द कस्टमर इंटरेक्शन इज सच कि प्रोडक्ट के ऊपर जजमेंट नहीं हो रही, आपकी सर्विसेज, आपके ऑन टाइम, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके वर्ड्स जो या फिर कभी कभी वैल्यू जो आप इम्पार्ट कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी होता है. सो ट्रैक एचआर ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब उनको दिया, इसी में ही आप एक कस्टमर खोल दो, उसके 7-8 प्रोजेक्ट्स जो भी या 7-8 स्टेप की मैंने पहले डिस्कशन करना है, फिर मैप करना है, फिर क्रिएट करना है. पूरा चैनल आप इसमें क्रिएट कर लो जिसमें आप अपनी पूरी टीम को इन्वॉल्व कर दो. कंटेंट क्रिएटर ये है, डिजाइनर ये है, एग्जीक्यूटर ये है, पोस्ट ये करेगा, फीडबैक ये लेगा और फिर से एक चेंज चलेगी. तो पूरी एक साइकिल होती है PDCA की. वो साइकिल आप इसमें मैप कर दो कि आप 1 2 3 4 5 6 10 स्टेप्स फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ये जैसे मैप करते हो 10 के 10 लोग उस समय ही अलर्ट होते हैं जिस समय उनकी बारी आने वाली है या काम आने वाला है. But everybody knows everything about that particular project whenever he needs or she needs. So there's no communication gap between the team members. There is no client close नहीं होता कभी-कभी. Correct. Right? Communication gap between team members, between the owners as well as between the customers. Yeah. कभी-कभी change शुरू हो जाती है. They are aligned in the same cycle. Correct. They know that if there's a change in a logo, the designer is having the thing. सबको और पता जो पोस्ट करने वाला उसको भी पता है कि चेंज है लोगो में, so I'll not be posting the previous work which he's been designing. सबको पता है वो चेंज आ जाता है. Correct. एंड कस्टमर कभी-कभी इससे इंटरेक्ट करने की बजाय इससे करता है ना, वो भी कम्युनिकेट कर सकता है, सर आपने लास्ट टाइम रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, इसको भी मैं केटर करूँ ना इसमें, बिकॉज योर सजेशन वाज एक्चुअली गुड, इसको भी कर देता हूँ. एंड दैट गिव्स अ सेंस ऑफ आई वुड से ओनरशिप टू द कस्टमर ऑल्सो. हाँ मेरी बात तो तुरंत सुन रहे हैं. इट इज बीइंग टेकन एज कि मैं ही प्रायोरिटी कस्टमर हूँ. एंड व्हाट सिंपल थिंग वी क्लोज्ड इज कम्युनिकेशन गैप्स. एक ही पर्सन सारी लिंक का पार्ट है. If you make your customer a god, he'll come, you know, Again and again. That's the main He'll thing. worship you. Exactly. So that channel or that cycle which you've been following, कि you are aligning every team member जो उनके एक-एक थोड़े भी point of
वर्क के लिए अलाइंड है एंड यू आर अलाइनिंग एंड integrating each and everyone at that position, that's something phenomenal. So being a very young entrepreneur, honestly, right, what are some pinpoints which to be entrepreneurs have to focus on? Because आपने ये age में, I don't want to specify, but at this age you started a very new vertical and you are successfully accomplishing many things on that. But some to be entrepreneurs who are watching us or someone who wants to create startup in their domain, so what are some key points जो उनको पहले से ही focus करना पड़ेगा? Because if they focus on that point, they are aligning themselves for a better scaling up startup rather than burning that startup. So what are some points on that? सी एक पॉइंट जो मेरा पर्सनल बहुत कनेक्ट है और एक पॉइंट जो बिजनेस का रूल है, 2 पॉइंट्स मैं मेंशन करना चाहूँगा. बिजनेस रूल पहले बताता हूँ कि वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ थिंग, डोंट क्रिएट जो आपके दिमाग में है, क्रिएट समथिंग फॉर अ कस्टमर. फाइंड द कस्टमर फर्स्ट. कस्टमर पहले ढूंढ लोगे या कस्टमर ढूंढने के बाद पेन पॉइंट पहले ढूंढ लोगे ना, देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट प्रोडक्ट. तो दैट प्रोडक्ट वुड 90 to 95% बी सक्सेसफुल until unless आप बिल्कुल ही गलत ट्रैक पे ना चले जाओ, बिकॉज यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम दैट यू सॉल्विंग फर्स्ट एंड देन यू हैव क्रिएटेड समथिंग. दिमाग में आया ये बना दूँ, वो सिर्फ एक एकेडमिक प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन वो सक्सेस होगा नहीं होगा उसके कुछ चांसेस नहीं होते. सो दैट्स अ बिजनेस काइंड ऑफ अ रूल. Credibility होनी चाहिए प्रोडक्ट की. क्रेडिबिलिटी एंड यूज केस होना चाहिए. पहले यूज केस आइडेंटिफाई कर लो, देन यू क्रिएट द प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट दैट विल टेक शेप मे बी इन ईयर्स टू कम, बट वो आपका पेन पॉइंट आपको आइडेंटिफाइड था, वो भी इम्प्रोवाइज होगा. दिस इज बिजनेस पॉइंट. पर्सनल पॉइंट दैट आई हैव नोटिस कि बहुत डिलेमास होते हैं व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट और यू आर एन आईटी जॉब पर्सन. मैं जैसे हूँ, हमें लगता है कि आईटी में हम अच्छा कर रहे हैं ना, आई एम अ गुड प्रोग्रामर सो आई कैन डू दिस फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. मैं अपना ही बिजनेस क्यों नहीं खड़ा करता, सारे मार्जिन मेरे, कस्टमर से मैं बात करूंगा, पैसे भी मैं चार्ज करूंगा. अभी ये ओनर डिसाइड कर रहा है कि मेरा क्या सैलरी होना चाहिए, मेरे को कर रहा है, मेरे को एक एक्स अमाउंट दे रहा है, कस्टमर से 3x चार्ज कर रहा है. सो दिस इज अ बिग गैप दैट आई कैन क्लोज एंड आई कैन क्रिएट माई बिजनेस. मैं स्टार्टअप बना लेता हूँ. बट बहुत एक बड़ा मिथ है ये, या एक बहुत ही बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी है कि व्हेन आई एम अ गुड पर्सन इन अ पर्टिकुलर स्किल, आई एम अ गुड टेक्नीशियन, मैं एक अच्छा स्किल्ड पर्सन हूँ इन दैट पर्टिकुलर एरिया, बट आई एम नॉट एट ऑल अ गुड बिजनेस ओनर. वाई? बिकॉज मैं वो एक काम करना अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे उस काम के अराउंड चीज़ें ही नहीं पता. How to sell the product? How to You sell know the how to product. make the product, right? Yes. आपको जलेबी बनानी आती है, बट Correct. जलेबी को बेचना कैसे है? बेचना तो एक पॉइंट, जलेबी बनाने के लिए पैसा कहाँ से लाना है, वो कढ़ाई कहाँ से खरीदी जाती है, वो कढ़ाई में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, मेंटेनेंस कैसे होती है, एंड आउट ऑफ इट ऑल आपको कल अगर लोन से बैंक वाला लोन मांगने आ जाए, आप पे कैसे करोगे, अकाउंट्स कैसे संभालोगे, एक पीएन की भी सैलरी कैसे दोगे, एक पीएन को सफाई भी, एक कपड़ा भी खिला के कैसे दोगे. आपको सोर्सिंग ही नहीं बता दिया, आपको तो सिर्फ बनानी आती थी, कढ़ाई और तेल और सब दे दिया जाए तो. दीज आर वेरी ह्यूज एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस ओनर. काम करने को तो कम ही मिलता है, मैनेज बहुत करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट बहुत करना पड़ता है, एंड फाइनली मैनेज और कोऑर्डिनेशन और काम तो एक बात, विजन. हमें विजन है कि हम बिजनेस को किस सेंस में ले जाना चाह रहे हैं. 5 साल का बिजनेस कर रहे हो तो विजन की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांटिंग टू क्रिएट अ लेगेसी और अ 25, 30, 50 ईयर ओल्ड बिजनेस, आपके पास विजन होना चाहिए. विजन के साथ मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नीशियन इज काइंड ऑफ अ क्यूमुलेशन ऑफ अ बिजनेस ओनर. ये हमें नहीं पता होता है. हमें पता है, हमें लगता है कि मैं कल ही एक नया पॉडकास्ट चैनल शुरू करता हूँ, बना लूंगा. नॉट एट ऑल ईजी. यू नीड टू सी अ लॉट मोर एस्पेक्ट्स अराउंड दैट पर्टिकुलर एरिया to create it as a business model. There are 10 different podcasters, right? What is the main thing which you are providing? Right? एक content है, right? What's the credibility of the show? Correct. There are many things on which you have to focus on. So, Yes. starting off any another venture on that initial scale, आपको लगेगा कि हम कर लूंगा मैं, सब कुछ हो जाएगा. But it's not that It's not at storytelling all. situation. प्रोग्राम आप बना लोगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा. यही हुआ मेरे साथ भी, नहीं होता कुछ भी. आप एक अच्छे टेक्नीशियन होते हो, आपको लोग शायद क्लैप भी कर देंगे आपके कोड के लिए, बट उसके अलावा क्या? आर यू कनेक्टेड विद द कस्टमर्स, आर यू कनेक्टेड विद द पीपल, सप्लायर्स, डू यू नो वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम? तो ये सब चीज़ें एक बहुत मिथ होता है. तो ये चीज़ मैंने सीखी, एंड दैट्स व्हाई आई ऑल्सो वांट टू रिकमेंड अदर पीपल हु आर स्टार्टिंग अप और हु आर मेकिंग अ चॉइस बिटवीन अ जॉब और अ स्टार्टअप और अ बिजनेस, कि सिर्फ बिजनेस को एक स्किल के ऊपर मत तोलना. यू माइट बी ग्रेट इन समथिंग, बट यू डोंट नीड टू बी एस इन वन ट्रेड. For a business owner, you need to be jack of all trades. You have to focus on multiple aspects. Don't focus it कि मुझे बेस्ट फाइनेंस पर्सन बनना है या बेस्ट अकाउंटिंग आनी चाहिए. जस्ट नो द बेसिक्स ऑफ इट. उस चीज़ों को ले लोगे ना, तो आपके लिए बिजनेस या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ईजी हो जाएगा. आप जर्नी में तो सीखोगे ही सीखोगे, बट यू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम -1, नॉट 0. एक साल अपने आप को दो टू एडजस्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब वाला इन टू द बिजनेस एटमोसफेयर.
मेरे को 1 साल लगा, जबकि मेरे फादर का बिजनेस मैं कब से देख रहा था. मैं तो बोलूँगा 2-3 साल का बफर लो. यू हैव इनफ टाइम. यू आर नॉट क्रिएटिंग अ 5-year-old बिजनेस. आप 50 साल करोगे. सो गिव योर सेल्फ 2-3 years ऑफ अ बिगिनिंग टाइम. बी पेशेंट, बी परसिस्टेंट. वो -2, -1, 0 पर आने के बाद बी कॉन्फिडेंट. अब आप लर्न करना शुरू करो. फर्स्ट अनलर्न द थिंग्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम अ कॉर्पोरेट एनवायरमेंट. Then start learning from a business perspective, from an owner's, maybe from a worker's perspective. Correct. That was something very great, and the conversation which we had, it's very insightful for new age startup founders also, and it was a motivational session for viewers also who are watching us at that, because at this age, you have created a very new vertical, though you had a legacy owned business. So वो एक बहुत बड़ा point होता है that you are having that sort of a remuneration to enjoy your life at your level best, but you're choosing to create something of your own. That's a very hard and gut filled decision from your end जो आपने बनाया है. It was a phenomenal conversation which we had on entrepreneurship, on tech HR, and how did you build this. But बहुत सारे लोगों को नहीं पता that who Sonal is after 9 to 5. Right? Everyone knows you from the meetings, from the conversation, and from the leads which you've been telling them to do. बट सोनाल को कौन सी सीरीज पसंद है, उनको पाइनएप्पल के ऊपर पिज़्ज़ा पसंद है या नहीं पसंद है, वो आई गेस आपके फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता. सो लेट्स मेक दैट हु सोनाल इज आफ्टर 9 to 5, एंड वील स्टार्ट ऑफ विद अ रैपिड फायर राउंड. So my first question is that which is the most communication tool or app which you use on your daily basis? I would say Track HR. हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बोला ही है, जो सिस्टम हम बनाएंगे हमें यूज़ करने हैं. तो नो व्हाट्सएप, नो ईमेल्स, ओनली Track HR. कॉल्स भी नहीं. Okay, no calls. नो कॉल्स. One Indian startup you felt in love with? 0 था. Zero था. Biggest productivity hacks you are using or you are implementing? आई वुड से जो भी आप काम करते हो एज एन ओनर, डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट आज का या कल का. थिंक ऑफ इट इन अ लॉन्गर टर्म. अभी ऐसा लगेगा कि आज के 2 मिनट बचा लेता हूँ ये चीज़ करने में, बट इन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द लॉन्गर टर्म, इट विल सेव अ लॉट मोर टाइम एंड पेशेंस एंड एफर्ट्स ऑफ यू एंड योर टीम. तो थिंक ऑफ एवरीथिंग एज अ लॉन्गर टर्म. छोटे छोटे इम्पैक्ट का लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल सोच लो. Last book or a podcast which you read or listened which made a differentiating factor in your journey? A book that I would definitely recommend is E-Myth by Michael E. Gerber. वो लास्ट बुक भी है और वो मैं कम से कम 5 बार पढ़ चुका हूँ. So that's a very great book. And what a podcast, if you've listened to any podcast? Specifically, again, because I follow Zerodha, I follow Nikhil Kamath. A very strange conversation was having with Badshah and For the restaurant, right? for the restaurant. Yeah, and he actually talked about a luxury product जो एक टी-शर्ट का प्रोडक्ट था और बोला था ये नीश स्पेस है या नहीं है. So that was a very strange conversation. मैंने सोचा नहीं था वहाँ पर होगी, but it was a very eye-catching conversation. Okay. And if not Trek HR, what would Sonal be doing except joining Hex? I think I would be some kind of a consultant or some kind of a guide in how to run businesses, maybe, क्योंकि मेरे को पसंद है. I like to learn about every business that there is in the world. कैसे क्या चीज़ बन रही है, कैसे क्या चीज़ हो रही है, and I get to learn only when I provide some value. तो मुझे पता है किसी को अगर मेरे को सिखाना है ना, मुझे भी उसको रिटर्न में देना पड़ेगा. So I want to give them back whatever I've learned, maybe in a positive manner, कि उनका business better हो, and then keep learning. That's the hunger to learn more. And last and final question, momos or pizza? Being a Delhi guy, honestly. I think momos. 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 So thank you so much, Sonal. It was a very good and an insightful conversation which I had, and it was something new for me, honestly. Because see, I've been doing with Pet Puja, Creek Heroes, and many software as a service companies, but I never had a podcast with a HRMS software or building something into that domain. Right. So it was a pleasure for me to host you on our show. It's a pleasure for me as well. I hope you liked the way absolutely we just had the podcast, and thank you so much for coming on our show. Thanks to you and your team too for having me, and this is actually one of the very good opportunities being a part of your conversation and the way you drive things. So it's awesome, and thank you for having me first of all. And how do you find the platform of Beyond the Noise podcasting you? I think you are justifying the name. You are very well justifying the name. If I can give an example, I'm sitting here not because I'm a very successful person or I'm a success story. I may be a success story in the making, but you are somehow identifying the people that you align with. आपको पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि conversation अच्छी होगी. And वो तो हुई है. So that's a very peculiar thing, and you are totally justifying your name, and hats off to you. Thank you so much that you came on this short notice, and pleasure is all mine. And I hope we can have a second podcast when Trek HR comes into that compelling level with Keka or something very big.
and I'm Absolutely. looking for that soon. Absolutely. Some new products also, maybe. Sure, Yeah. sure. Fair enough. Definitely. Thank you so much for coming on our Thank you. show. Thank you.